देखो ये what I am going to do is, first of all, good morning to everybody. The question is, which one is greater? E to the power pi or pi to the power. I think you are familiar with this E. Yes, sir. It is nothing but what? 2.71. 2.77 something its value is. ठीक है. So we are not concerned about, and the value of pi is 3.14. This you have been learning since 10 class. ठीक है. So what we are going to do is, this particular problem we are not going to solve using any algebra or arithmetic or anything. We are going to solve this particular problem using the differential coefficient, means using differentiation. Okay, so that is a new thing, I think. So let me first give you a small introduction regarding the differentiation, increasing function and decreasing function. ठीक है. Okay, sir. तो पहले देखो इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है क्या, उसको हम पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. जस्ट ये देखो, व्हाट आई एम टेकिंग इज, आई एम टेकिंग द ग्राफ फॉर ए फंक्शन एफ एक्स. एफ एक्स का ग्राफ हम यहाँ प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है. क्लास 10 तक में तुम लोग पढ़ी हो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना. सॉरी, इज स्ट्रेट लाइन. इज इट समथिंग लाइक दिस? अरिता, थोड़ा बात करके बोल दो सर. गोल्डी बात करके बोल दो. हाँ देखो. ओ कोई बात नहीं है, चलेगा. हाँ हाँ, वो एडिटिंग फैडिटिंग करने का जरूरत नहीं. देखो ये स्ट्रेट लाइन को तुम जब प्लॉट की थी 10 क्लास में जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो डू यू रिमेंबर समथिंग? दिस पॉइंट इफ यू आर कंसिडरिंग, देन इट हैज़ x coordinate and this one is the y coordinate. Am I clear? So in the similar manner, instead of we are taking this straight line, if this fx is drawn something like this, okay, or otherwise something like this. Clear? Yes, sir. In both these diagrams, one thing, Ajay, first let us discuss in this case. Over here what you are finding is, this one is your, this one we have taken as x-axis and this one was the y-axis. So as we are proceeding in the right hand side direction, the value of x, do you think, will keep on increasing? Say yes or no. Yes, sir. And corresponding value of, means what, the y also keeps on increasing. If I take this one as y1, from here if I take a perpendicular, another perpendicular we are dropping on the y-axis, then this will be y2. Then over here what is happening is x1 is less than x2, then correspondingly we are getting what, y2 is greater than y1. Yes, sir. ठीक है. So here, from here only the concept of increasing function, decreasing function you can little bit understand. What is happening here? As the value of x is increasing, the value of y, that y is nothing but this y can be taken as fx, fx2, and this can be taken as fx1. Am I clear or not? Yes, sir. ठीक है. This y2 and y2 is nothing but it is fx2, and y1 is nothing but it is fx1. Now let us come to this particular diagram, means this one and this one. Over here, this again we have taken as x-axis and this one was the y-axis. Okay? Yes, sir. Y-axis means on this particular axis all the values fx will be plotted, means from here to here.
Yes. Yes or no? Yes. And how it will be plotted? Let us take a point x1 along the x-axis. Let us take another point x2 over here. So what are you observing? Do you find here also x2 is greater than x1? Yes. And the corresponding value means corresponding value of fx on y-axis, that is this one, can you take as fx1? Yes, sir. That is your y1, nothing but. From here if I drop a perpendicular on the y-axis, then this length means this point will be fx2 or y2. Yes, sir. So y2, y1 we are just ignoring. We are taking fx1 and fx2. Means if I am writing in place of this x2 fx2, then sign of inequality will remain intact and this will be fx1. So far is it clear or not? Yes, sir. Okay. Now what is happening over here? Just try to understand. Acha, I am removing this particular diagram because it is making the things clumsy a little bit. This also let us remove. Now let me discuss this one. I am making this curvature a little bit more so that you will be able to understand the tangent drawn at any point over here. What I am going to do is I am taking x1 on the x-axis, another point I am taking x2 on this x-axis itself. From here, if I drop a perpendicular, and from this point if I drop a perpendicular on the y-axis, do you think this point will be fx1? Yes, sir. From here if I take a perpendicular and another perpendicular we are taking over here, then this will be fx2. Yes, sir. Achha, one thing I missed out. If you are writing the coordinates of this particular point, will it be x1 comma fx1 Yes. or x1 comma y1? Also we can write in this manner. If I write the coordinates of this point, will it be x2 comma fx2 or x2 comma y2? Yes, sir. So far any doubt? No, sir. Same thing will happen over here, that I have not yet mentioned. Okay, that I have not mentioned. What I want you to focus is, Ajab, let me just draw again it, because that diagram has become very dirty. Ajab, have you got any idea regarding what is the geometrical meaning of the dy by dx? What is the? Smallest quantity. No. dy by dx. Acha, let me first explain you that dy by dx. dy by dx is nothing but it is the differential coefficient of any function with respect to x. It is not, if we are in standard way we are taking with respect to x, it can be differentiated with respect to y, with respect to z, etc. everything. But I am not making the things very clumsy. Let me just explain you what is actual meaning of the dy by dx. Let us take fx again. I am taking this one as fx, means we have plotted the graph for fx. The dy by dx can be found at infinite number of points lying on this curve, Okay, sir. and each value of the dy by dx will be different than the dy by dx found at any other point. Means, for example, if I take the dy by dx at this point, or if I take a dy by dx over here, or I take the dy by dx at this point, all these values will be different. Am I clear? Yes, sir. Then the question might have come in your mind that why it is different. See, this is a curve, Yes. okay,
And you have learnt in the lower classes that on the circumference of the circle, if we want to draw a tangent at a particular point, how many tangents you will be able to draw at that particular point? One Only one, and one single tangent. tangent can be drawn. So same thing will happen with this curve also. Although it is not a perfect circle, but you can consider it a curve, and at each point let me just draw over here a tangent. Okay, the diagram is not so clear, but still you can make out that at this particular point, if I am taking this one as, say for example, A1, not A1, I am taking it as X1. Okay, so one tangent is drawn over here. Yes, sir. So are you finding this tangent will make an angle with the x-axis? Yes, sir. Whatever angle over here is formed, okay? Tangent of that angle means tan theta 1 Tan theta. is the dy by dx at x is equal to x1. Okay, sir. More precisely, it is called as the slope of the tangent. Tangent where? Tangent at The curve. x is equal to x1. Okay, sir. Okay? Same way, do you find we can draw a tangent at this point? The diagram is little bit unclear, but you make out that this dotted line is drawn over here at x2. So this will again form an acute angle with the x-axis. Yes, sir. ठीक? Once again you are finding what? Over here also we can draw a tangent. बात को समझो, ये एंगल को हम थीटा 3 ले रहे हैं. Okay. ठीक, मतलब tan थीटा 1, tan थीटा 2, tan थीटा 3, ये सब क्या है? ये dy by dx at x is equal to x2 था. ये dy by dx dy by dx at x is equal to x3 था. Yes, sir. तो सारा का सारा ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप. ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप एट x इज इक्वल टू x2. Yes, ये sir. स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? एट x इज इक्वल टू x3. Yes, sir. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. ठीक. And one thing I have already explained you over here. See that if x2 is greater than x1 or x1 is less than x2, then fx1 is less than fx2. Yes, sir. And over here what are you finding? I am taking only the X2. connection between this x1 and x2. ठीक है? This x2 is bigger than this x2. Alright? Yes, sir. So are you finding as the value of x increases, the corresponding value of fx also keep on increasing? Yes, sir. So if this situation is there, means this situation over here, this one, this is called increasing function. Okay. आया समझ में? Yes, sir. And over here what has happened over here? This I am talking about. Did you find x1 is smaller than x2 has given you result fx1 is greater than fx2? Means the sign of inequality over here has changed. So if this situation comes, No, it is decreasing then function. it is called decreasing function. Am I clear so far? Yes, sir. I have already explained you over here. Are you finding this diagram is similar to this? Yes, sir. ठीक है? And since over here it was an increasing function, so this also will be an increasing function. Yes, sir.
And are you finding that at each point of this curve, wherever I have drawn the tangent, it was forming an acute angle with the x-axis? Yes, sir. ठीक है? If the acute angles are formed, do you think the value of tan theta will always be positive? Yes, sir. समझो बात को ध्यान से। देखो, अगर हम लोग tan थीटा निकाल रहे हैं इन सब में, तो क्या वो सब एक्यूट एंगल के साथ tan थीटा निकल रहा है? और अगर एक्यूट एंगल के साथ है तो क्या होगा? tan थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव हाँ। तो आर यू फाइंडिंग अ कनेक्शन बिटवीन tan थीटा ये सब का वैल्यू, मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, विद द इंक्रीजिंग फंक्शन? Yes. व्हाट? आई वांट द आंसर टू कम फ्रॉम यू। देखो, फिर से समझो, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ भी इंक्रीजिंग था, तो हम लोग क्या देखे थे? सब dy/dx जो निकाल रहे हैं, मतलब tan थीटा का वैल्यू अभी ना बताया, tan थीटा इज नथिंग बट इट इज व्हाट? Slope. So slope of the tangent which is representing dy/dx at that particular point. Yes, sir. Am I clear? Yes. तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उस फंक्शन के ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर जो टैंजेंट हम लोग बनाएंगे उसका वैल्यू, मतलब उस टैंजेंट का स्लोप का वैल्यू, सॉरी नॉट टैंजेंट, उस टैंजेंट का स्लोप जो कि tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। यही कनेक्शन हम बता रहे अच्छा। ओके सर। थे। Am I clear? यस सर। इसको एकदम गांठ बांध करके समझ लो। ये तुम्हारा 12th क्लास क्या, इवन व्हेन यू आर डूइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आल्सो वी कैन यूज द dy/dx। ठीक है? अभी देखो, ये तुमको हम समझा दिए इसमें, किसमें? इंक्रीजिंग फंक्शन में। लेट अस टॉक अबाउट दिस डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको भी हम समझा दे रहे हैं यहीं। देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा था, हम दोनों डायग्राम को एक साथ बना दे रहे हैं। आज हो सकता है कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं क्योंकि तुम्हारा टाइम हो रहा है, लेकिन ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे रिलेटेड वहाँ तक हम तुमको समझा दे रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर पापा आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये देखो, डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसा करके था तो ज़्यादा कर्वेचर बन गया। एनीवे ठीक है। तो हम क्या बताए थे, यहाँ पर अगर x1 ले रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम जानबूझ के, नहीं तो क्या होगा, टैंजेंट जो बनाएंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो x2, यहाँ पर x3, ठीक। यस सर। हम इसको x1 बना दे रहे हैं, इसको x2 बना दे रहे हैं, ये वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टैंजेंट बनेगा ना, वो हमको लगता है पैरेलल जैसा हो जाएगा। देखो ध्यान से, अच्छा ये तो हम तुमको समझा चुके हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर fx1 और यहाँ पर fx2, ठीक। x2 यहाँ पर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या आ जा रहा है? रिवर्स हो जा रहा है फंक्शन fx2, यस। ठीक। मतलब ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम लोग को इस्टेब्लिश करना है द रिलेशन बिटवीन द डिक्रीजिंग फंक्शन and the slope of the tangent, that is the dy/dx at any particular point on the given curve. ओके सर। उसके बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम बताने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर एक टैंजेंट बनाते हैं तो इसको हम x एक्सिस को थोड़ा बढ़ा दें, ठीक। तो क्या ये एंगल बन रहा है? अच्छा एक चीज़ हम बताना भूल गए कि एंगल जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे। ये चीज़ मालूम है? यस सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, A for anti, C for clock and vice direction, it is taken as positive, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी ध्यान से देखो तो इसको देख करके क्या तुमको लग रहा है कि ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है? यस सर। ठीक।
यहाँ पर अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो आर यू फाइंडिंग यहाँ भी जो एंगल बनेगा क्या वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा? यस सर। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल हुआ तो tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तक, मतलब 90 से छोटा रहेगा तक रखेंगे, 0 से लेकर 90 के बीच में, पॉजिटिव तो हो। पॉजिटिव होगा। 90 पर तो वो अनडिफाइंड है। उसके बाद 90 के बाद जैसे ही Minus. 180 डिग्री तक जाएंगे वो नेगेटिव होता जाएगा। यस सर। तो आर यू फाइंडिंग एट ईच पॉइंट ऑफ दिस कर्व wherever we are drawing a tangent, it is forming an obtuse angle with the x-axis, and since it is forming an obtuse angle with the x-axis, so what do you find? That dy by dx, मतलब slope of the tangent is always negative. यस सर। Am I clear? यस So सर। what is the connection between the decreasing function and the slope of the tangent or dy by dx? You tell me. द एंगल। No, not angle. See, again I am just explaining. If any function, given function is decreasing function, और decreasing function होने के लिए क्या कंडीशन था? ये वाला। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके उसके किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट हम लोग बनाएंगे वो नेगेटिव उसका स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब dy by dx का वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव होगा। Once again I am repeating, if any function is decreasing function, then dy by dx at any point of that given function will always be negative. तो इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ लिख रहे हैं। For an increasing function dy by dx और f dash x, ये देखो dy by dx को f dash x भी लिख सकते हैं। ओके सर। एफ एक्स लिखते हैं हम लोग y को, dy by dx इसको लिखते हैं और ये अब एफ एक्स हो जाता है f dash x। 6। तो फॉर एनी इंक्रीजिंग फंक्शन dy by dx एट एनी पॉइंट ऑन इट्स कर्व is always पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक, इसी का उल्टा हो जाएगा फॉर एनी डिक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन dy by dx dy by dx और f dash x at any point on its curve इज ऑलवेज नेगेटिव। is always negative. ठीक है, यस सर। टाइम है और समझा दें। अब आ जाओ जो प्रॉब्लम हम लोग लिए थे, मतलब e टू दी पावर पाई और पाई टू दी पावर ई में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, अभी यू विल बी सरप्राइज्ड एंड यू विल बी अमेज्ड कि हाउ dy by dx इज यूज्ड इन दिस। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसके सॉल्यूशन में लेट मी जस्ट एज्यूम, इट इज़ नॉट द फाइनल आंसर, लेट मी जस्ट एज्यूम दैट e टू दी पावर पाई इज़ ग्रेटर दैन पाई टू दी पावर ई। ये हम लोग मान ले रहे हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, अगर हम दोनों तरफ मतलब इसके पावर में इफ़ आई एम डिवाइडिंग बाई e टू दी पावर पाई डिवाइडेड बाई ई पाई, और ये साइन को इंटैक्ट इसलिए रख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। यस सर। और यहाँ पर देखो पाई टू दी पावर e डिवाइडेड बाई ई पाई से डिवाइड किए हैं इंडेक्स को। यस सर। तो आर यू फाइंडिंग दिस टू विल गेट कैंसिल्ड, दिस टू विल गेट कैंसिल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, e टू दी पावर 1 बाई ई ग्रेटर दैन पाई टू दी पावर 1 बाई पाई। आया समझ में आता है? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ध्यान से देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या ठीक है, क्या ये x टू दी पावर 1 बाई एक्स जैसा नज़र आ रहा है? यस सर। मतलब x की जगह अगर e डालेंगे तो 1 बाई एक्स की जगह 1 बाई ई आ जाएगा, यस सर। x की जगह पाई डालेंगे तो 1 बाई पाई आ जाएगा यहाँ पर। यस सर। तो करो क्या तुम, इसको
एक्स टू दी पावर 1/x को हम लोग एफ एक्स ले लेते हैं। ओके। समझ में आई बात? यस सर। और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के पहले हम लोग इस दोनों तरफ में लॉग ले लेते हैं। हालांकि एक फार्मूला है जो कि तुमको शायद पता नहीं, यू आर फेमिलियर विद दैट और नॉट। तो लॉग लेकर के ज़्यादा आसान रहेगा। लॉग टू द बेस ई एंड दैट इज़ मोर प्रिसाइसली नोन एज द लोन ई। तो आई एम राइटिंग ln एफ एक्स। दो तरह का लॉगरिथम होता है, एक तो नेचुरल लॉगरिथम और एक तो कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होगा, नेचुरल में बेस ई होगा। मतलब लॉग जैसे a टू द बेस 10 अगर है तो ये कॉमन हो गया, कॉमन लॉगरिथम। और लॉग a टू द बेस e अगर है तो ये नेचुरल लॉगरिथम। ठीक, दोनों डिफरेंस है। दोनों के बीच में क्या कनेक्शन अभी टाइम नहीं है, बाद में हम बता देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इतना खाली याद है। तो दोनों तरफ ln एफ एक्स इधर कर दिए और यहाँ पर ln x टू दी पावर 1/x कर दिया। तो ये फार्मूला शायद 10 क्लास में पढ़ी हो, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। यस सर। तो 1/x टू यू फाइंड। अच्छा देखो, यहाँ पर हम इसके बीच में कोई भी बेस नहीं लिए हैं। जहाँ ln लिख दिए मतलब कि बेस इज़ ऑटोमेटिकली e। ओके सर। ठीक ठीक है, ये याद रखना। यहाँ गलत हम लिखे हैं ये, हालांकि log a टू दी बेस e भी लिखना सही है, जो कि हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ln a। ओके। तो यहाँ देखो ये 1/x इसके जैसा क्या सामने आ जाएगा? यस सर। तो ये 1/x हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? ln x। ठीक, यस सर। अब देखो ln एफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब फाइनली हम लोग के पास क्या मिला? ln एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू ln x। ठीक है, यस सर। अभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब पढ़ोगे तो उसमें तुम पढ़ोगे डी डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x। थोड़ा सा जा करके फार्मूला सब देख लेना कैसे आता है, ये सब हम बता देंगे। बाई फर्स्ट प्रिंसिपल दिस कैन बी डिराइव्ड। ठीक है, और ये जो देख रही हो राइट हैंड साइड में, मतलब अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ यस तो सर। इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाला चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? पहले तो 1/x की जगह पर एफ एक्स है, उसके बाद एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली चेन रूल। तो इनटू एफ डैश एक्स। आया समझ में? यस सर। अभी ध्यान से देखो, ये 1/x इंटू ln x, एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं u इंटू वी मेथड। मतलब डी डी एक्स ऑफ यू वी होता है u मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एक्स प्लस v मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, सब हम बताएंगे बाद में। फिलहाल तुम खाली याद रख, ये समझो कि यू वी मेथड यूज़ करके हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो इसमें u कांस्टेंट हो गया, इसको हम लोग u लिए हैं तो 1/x कांस्टेंट, और ln x का डिफरेंशिएशन मतलब dv बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी हम बताएं ln x का डिफरेंशिएशन इज़ व्हाट? 1/x। तो विल इट बिकम 1/x यस सर। प्लस क्या होगा? ln x विल बी नाउ कांस्टेंट। 1/x को इमेजिन करो, 1/x कैन बी राइट एज x टू द पावर -1। तो अगर इसका डी डी एक्स निकालते हैं तो इसका मतलब हो गया डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर -1। यस सर। इसका डिफरेंशिएशन एक्चुअली डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फार्मूला से ये होगा n x टू द पावर n-1। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर n की जगह पर क्या है? -1 है। यस सर। तो इसको अगर हमको डिफरेंशिएट लिखना पड़ेगा तो डू यू थिंक इट विल बिकम व्हाट? -1 n की जगह पर, यस सर। एंड x टू द पावर -1 विल इट बिकम -1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। यस सर। आया समझ में? यस तो सर। यू वी मेथड यही है। तो यहाँ देखो ध्यान से, ln x हम लिख दिए कांस्टेंट, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर। इज इट क्लियर सो फार और नॉट? यस सर। इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं। ठीक, यस सर। अब देखो ध्यान से, डू यू फाइंड दिस होल थिंग हैज़ बिकम 1/x स्क्वायर?
Yes, तो sir. 1/x² को कॉमन निकाल दो, यहाँ क्या बचा 1 माइनस ln x। Yes, sir. आया समझ में? ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और ये क्या है? पापा को थोड़ा सा बोलो और वेट करने के लिए कि तुमको जाने का गड़बड़ी है तो स्टॉप कर। ठीक है बोल सर। तो यहाँ देखो ये क्वांटिटी हम लोग लेके चले थे, तो एफ डैश एक्स आर यू फाइंडिंग इज कमिंग एज इक्वल टू वाट, एफ एक्स जो है ये राइट हैंड साइड में जाएगा मतलब इसके साथ, तो विल इट बी रिटर्न एज एफ एक्स डिवाइडेड बाई x², और ये 1 माइनस ln x होगा। Yes, sir. आ गई बात समझ में? अभी ध्यान से देखो, एफ एक्स किसको हम लोग इमेजिन किए थे, एफ एक्स वॉज इट दिस, और x का वैल्यू क्या 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 था, या तो e है या पाई है, दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है अगर e या पाई कुछ भी हम लोग डालेंगे इसमें तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। Yes, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी मतलब एफ एक्स क्या हो गया, x⁴ 1/x डिवाइडेड बाई x², ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है। yes, sir. अब सिर्फ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हम लोगों का डिपेंड करता है 1 माइनस ln x पर। बात को समझो, मतलब एफ डैश एक्स जो हम लोग निकाले हैं, मतलब क्या, एफ डैश एक्स हम क्या बोले थे, dy/dx। dy/dx जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसके आधार पर होगा, इसके आधार पर तो नहीं होगा, नहीं. ये हमेशा पॉजिटिव होगा। Yes, sir. लेकिन इसका वैल्यू डिफरेंट के लिए ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। Yes, sir. आया बात समझ? तो ध्यान से देखो, ऐसा सिचुएशन में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालना। इसको हम लोग, ये तो पॉजिटिव है मतलब एफ डैश एक्स को हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं। तो सिंस इट इज़ पॉजिटिव, तो 0 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव क्वांटिटी विल गिव यू 0, ओनली 1 माइनस ln x विल लेफ्ट इज इक्वल टू 0। Yes, sir. तो फाइनली इट इज़ बिकमिंग व्हाट, ln x को उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू ln x। ln x का बेस क्या था, e था, E था. तो ओनली x कैन यू राइट एज इक्वल टू e⁴ 1। ये डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है, 2⁵ इज इक्वल टू 8 अगर है तो log 8⁵ इज इक्वल टू 3। तो ये वाला चीज़ के सिमिलर ये है, Yes, sir. और 3 की जगह पर क्या है, 1 है। है. तो हम लोग जैसे इसको वापस 2⁵ इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, उसी तरह से e⁴ 1 कैन बी रिटर्न एज x। Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. तो x इज इक्वल टू ई जो है ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट इसको भी थोड़ा सा जल्दी से देख लो। देखो ई हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक, ई के राइट साइड में जब भी हम लोग जाएंगे कहीं पर भी तो ई से बड़ा वैल्यू आएगा, Yes, और ई के लेफ्ट साइड में क्या छोटा वैल्यू होगा। तो हम एक वैल्यू अपने मन से इमेजिन कर रहे हैं 1/e। डू यू थिंक 1/e विल बी लेस दैन दिस ई? Yes, sir. इसके राइट साइड में e² ले रहे हैं, डू यू थिंक e² विल बी ग्रेटर दैन ई? समझ में आया? तो अभी हम खाली इसको फोकस कर रहे हैं, 1 माइनस ln x। तो 1 माइनस ln x में x की जगह पर हम 1/e डाल रहे हैं, ln 1/e मतलब इसका बेस जो है ये e ही है। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस, डू यू थिंक इट विल बिकम ln 1⁴e माइनस ln e⁴e? Yes, ये sir. फार्मूला पढ़ी, और log m/n इज इक्वल टू log m माइनस log n। Yes, sir. बना. तो यूजिंग दिस फार्मूला 1/e को हम लोग इमेजिन कर रहे हैं m/n, Yes, sir. तो लिख दिए इस तरह से। log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होगा, ln 1 बराबर 0, तो ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस, और ln e मतलब log a⁴a इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। आर यू फाइंडिंग दिस 2? Yes, sir. इज इट ग्रेटर दैन 0? Yes, sir. 2 is greater than 0. आया समझ में? Yes, तो sir. बॉटम लाइन मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ई के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू हम लोग एक्स का डालेंगे, कौन सा डाल रहे हैं उससे हम लोग को मतलब नहीं है, ई के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू डालेंगे वहाँ पर क्या ये पूरा क्वांटिटी क्या पॉजिटिव होगा, Yes, sir.
और ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव क्या है, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है। यस सर। आया समझ में? और हम तुमको अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि कोई भी फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो उसका स्लोप तो भी वो पॉजिटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यस सर। ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, सर फर्स्ट पॉइंट। ये हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यस। डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव ऑलवेज। Yes. ठीक, तो यहाँ पर x2 इज़ ग्रेटर देन x1 देन fx2 इज़ ग्रेटर देन fx1। तो ये सिचुएशन हम लोगों के काम का नहीं है। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में, मतलब e के राइट हैंड साइड में e स्क्वायर जो है, ये अगर हम लोग डालते हैं इसमें 1 माइनस ln x में 1 माइनस ln e स्क्वायर टू द बेस e हम जानबूझ के लिख दे रहे हैं इसमें। तो डू यू थिंक दिस 2 विल कम इन द फ्रंट, मीन्स इट विल बी 1 माइनस 2 ln e टू द बेस e। ये फॉर्मूला पढ़ी हो, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। यस सर। ठीक, तो ये क्या हो गया, विल इट बिकम 1? यस सर। So are you finding it is 1 minus 2 is it equal to minus 1? यस सर। मतलब 1 minus ln x is coming negative if I am taking any value beyond this e। e के राइट साइड में कोई भी वैल्यू हम लोग लेंगे x का, उसके लिए 1 minus ln x ये वाला वैल्यू क्या हो रहा है, इज इट बिकमिंग नेगेटिव? यस सर। और ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, आर यू फाइंडिंग द होल क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। एंड व्हाट इज नेगेटिव, दिस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। यस। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या क्या तुम डिकोड कर सकती हो, That is a decreasing function. एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। यस सर। आया समझ में? तो हम लोग इसी पॉइंट का यूज़ करेंगे। क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर e है, हम लोग एफ एक्स का बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एफ डैश एक्स। यहाँ पर हम लोग को डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन किससे पता चला, एफ डैश एक्स से। लेकिन कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, वो फंक्शन क्या है, एफ एक्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी देखो ई का वैल्यू हम बता दिए थे 2.7 समथिंग, पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग। सो अगर हम फ्रेश डायग्राम यहाँ बनाते हैं, ई के लेफ्ट साइड में हम लोगों को काम नहीं है, ई के राइट साइड में कहीं पर पाई आएगा। तो डू यू थिंक ई विल बी लेसर देन पाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ई लेस देन पाई है तो एफ ई और एफ पाई के बीच में ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, उल्टा नहीं हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हम लोग जो वैल्यू ले रहे हैं किसके लिए ले रहे हैं, एफ एक्स के लिए ले रहे हैं। एफ एक्स वॉज वॉट, एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। तो एफ एक्स के लिए हम लोग ई और पाई दोनों वैल्यू लिए, तो और ये हम लोग डिक्लेयर कर लिए थे कि ई के बियॉन्ड, मतलब राइट साइड में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो हम लोग ई लेस देन पाई लेंगे, और अगर हम एफ लगा दिए दोनों तरफ तो डिक्रीजिंग फंक्शन होने के चलते क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। अब ध्यान से देखो, एफ ई का मतलब क्या हो गया है, एफ एक्स हम लोग किसको माने थे, एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। तो अगर यहाँ पर ई डालेंगे तो ये यहाँ पर भी ई आएगा, यहाँ पर भी ई आएगा, मतलब ई टू द पावर 1 बाई ई हुआ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम एक्स की जगह पर पाई डालेंगे, समझो बात को, यहाँ अगर पाई डालेंगे तो पाई टू द पावर 1 बाई पाई होगा, ठीक। लेकिन तुमको एक्चुअली निकालना क्या था, ये फाइंड आउट करना था कि ई टू द पावर पाई बड़ा है कि पाई टू द पावर ई से, या उल्टा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किसी से, क्या चीज़ से, ई पाई, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि ई पाई क्या है, पॉजिटिव है, और पाई टू दी पावर ई पाई डिवाइडेड बाई पाई। सो आर यू गेटिंग दिस टू कैंसिल्ड, आर यू गेटिंग दिस टू कैंसिल्ड, क्या बचा, ई टू दी पावर पाई ग्रेटर दैन पाई टू दी पावर ई। आपको पता करना था ना कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। आर यू गेटिंग द रिजल्ट? Was it interesting or not? Using differentiation on a differential coefficient, you have proved this thing.
दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो अब तुम जाओगे तो जाओ. ओके देन.